नहीं लिया। हाँ इरेजर तो उस पर पड़ा हुआ था, क्या जो बोर्ड था ना, बोर्ड के नीचे लोगों की तो वो चप्पलें चुरा के रख ली जा रही थी। माया अच्छी चप्पल। बात नहीं करो अभी, सौम्या आज ही आई हो। नहीं नहीं, और अभी बात कर रही हो। वो तो हो चुका है ना टेस्ट के साथ। फॉर्मेशन आगे जाके कुछ पढ़ा फिर इसका तो टेस्ट हो चुका है ना। सर फिर आपने तो कहा था आते आते ही टेस्ट में एकदम फ्रेश नहीं देना चाहिए। अभी समझाएं। सर ये सब करवाओगे या जो नहीं करवाए वो करवाओगे? सब करा दो, मतलब ऐसा ज़्यादा अच्छे से नहीं। सब करवाई थोड़ा क्या सोडियम पेरोक्साइड Al aluminum oxide hematite copper का cuprite और copper glands CuO/CuS zinc plant और calamine ZnCO3 ZnS चलो मर्क्यूरी का सिनेबार HCS और ये क्या बोलते हैं मैग्नीशियम वो पैरालिसाइड अभी बताएंगे प्रॉपर्ली। कई जगह तो उन्होंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं। स्पेशली वो फॉर्मेशन मेटलर्जी डिफाइन करिए। The branch of chemistry that deals with the purification and extraction of metal from ore is called metallurgy. This
is metallurgy and the chemistry involved in this also. ये भी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है. Minerals. The natural earth sample of metal from which The sample of earth crust which contains metal in either in combined form or ठीक है और हाँ और Those minerals from which metals can be extracted profitably is called and easily. All ores are minerals, but all minerals are gangue particles earthly impurity is present in metal state. in Present in earth. in ore. ठीक है. अयस्कों में जो मिट्टी के कण मौजूद रहते हैं उनको गैंग पार्टिकल. ठीक है. ओके. नाउ कैल्सिनेशन. Calcination, Heating of ore. heating of ore in absence of air is called This process is carried out for carbonate ores. Roasting. ये कैसे बता रहे हैं? रोस्टिंग. कोई सिंगल हो जितना भी कोई दवा. Heating of concentrated ore in presence of air to get metal oxide is called roasting. This method is used for obtaining sulfide. Or sulfide ore. Now magnetic separation. मतलब enriching या concentrating ore for ferromagnetic substances like cobalt, gadolinium, iron, nickel, chromium. ठीक है. This is called by magnetic method, by using magnetic rollers. Enriching or concentrating ore by using magnetic rollers or ferromagnetic substance. Froth flotation process. In case of copper or the near जो copper के नीचे है मतलब copper compound. In the case of copper compounds, fine oil is added and froth is made. So copper in combined form floats on the surface while gangue particles get wet and settle down at bottom. Then the froth is skimmed out. This is called froth flotation process. चलिए आप मिनरल बताइए. Ore. Ore. Those minerals in which metals are From which? sir, in which metals are they Gold, in metals, large bronze. amount and are extracted economically. Those minerals from which metals can be extracted. ऐसे बोलिए. ठीक है. From which metals can be extracted economically and easily. Is called ore. ठीक है. और जब ये लाइन लिखना अगली लाइन में जरूर लिखना जो अर्पिता ने लिखी है. All ores are minerals. All minerals are कैला माई का फार्मूला. नहीं समझते कैला माई. हेमेटाइट. ओके.
सिनेबार, सिनेबार का एल्यूमिनियम, क्यूप्राइट, क्यूप्राइट, CO2O, कॉपर ग्लास, CO2S, जिंक ब्लेंड, ZnX, रॉक साल्ट, NaCl, पायरोडिसाइड, pyrolusite, MnO. ठीक है, कैल्सिनेशन, The process, heating concentrated ore without air is called calcination. this process is used, कैल्सिनेशन, Heating up of ore in absence of air to get metal oxides is called, बहुत अच्छा। and this process is used for obtaining carbonate ore. ऑब्टेनिंग नहीं, दिस प्रोसेस इज यूज्ड, ठीक है, फॉर ऑब्टेनिंग मेटल ऑक्साइड Metal oxide. फ्रॉम कार्बोनेट ओर, रोस्टिंग, The heating up of ore, कंसंट्रेटेड ओर, concentrated ore in presence of air is called roasting, and this is used for obtaining और ऑब्टेनिंग मेटल ऑक्साइड्स फ्रॉम सल्फाइड ओर्स. metal oxide from sulfide. If you are given zinc sulfide, then which process you will prefer, calcination or roasting? Calcination. अच्छी बात, बहुत अच्छी बात. अब जो भी उसे कहना उसकी अपनी विचारधारा है, ये लोकतंत्र है. हाँ, if you are provided with zinc sulfide, then which process will you prefer? Roasting. Tell 5 metals of high reactivity, 3 metals of medium reactivity and 2 metals of low reactivity. High reactivity के lithium, potassium, sodium, 5 barium. वो सब नहीं, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जो बुक में 5 लिखे वही बताना है, उसी की मेट्रोलॉजी है आपके पास. तो बुक में देखो, बुक खोलो, उसमें देखो. हाँ, 3 हमें बताओ मीडियम रिएक्टिविटी. Magnesium, ऐसे नहीं है, बुक खोलो. हाँ, बोलो. potassium, sodium, हाँ सर हाई रिएक्टिविटी में साइड एक बार देख लो कर तीनों. calcium, magnesium and medium reactivity में है zinc, iron और lead, और low reactivity में है silver और gold. ठीक है, आपको तैयार हुआ? बोलो. potassium, sodium, aluminium, calcium, magnesium, सही है, high बस बस. reactivity है. हाँ. Zinc, हम्म, PV लगे, zinc, lead, iron, जिंक, लेड एंड आयरन. ओके, नाउ लो रिएक्टिविटी. Gold and if you are given lead carbonate, then which method you will prefer? Calcination. And what will be the product found by this due to calcination of lead carbonate? PBO, How will you reduce PBO? By using we would heat it. In presence in absence calcination. PBO मिल गया, अब इससे PB कैसे प्राप्त करोगी? अच्छा PBO से PB प्राप्त करना है तो उसको रिडक्शन किससे? कोक से. हाँ PBO प्लस कोक, हाँ उसे समझ में आएगा? PBCO मिल जाएगा. Why are you doing electrolytic refining? ठीक है, to get ultra pure metal, किसी भी चीज का ultra pure metal करने के लिए from rock salt, how would you get sodium? आपको तो कोई जिम्मेदारी है नहीं, 1 नंबर लिया है तो उसमें रॉक साल्ट में दिखाया नहीं है क्या? ये आपने लिखा नहीं है, रॉक साल्ट का नहीं लिखा तो आप तो सर लिखा नहीं है, मैंने कहाँ से बताऊँ? हाँ, फ्रॉम रॉक साल्ट हाउ विल यू गेट अल्ट्रा प्योर सोडियम?
What would be the material of anode and what would be the material of cathode in electrolytic refining of rock salt? तुम तो हंस देते हो जैसे हम अंग्रेजी में बोल रहे हैं. From rock salt, how will you get ultra pure sodium? Which material you will, which kind of material you will use for electrode of anode and cathode in electrolytic refining of sodium from rock salt? तो कौन सा मटेरियल यूज करोगे इलेक्ट्रोड्स के लिए? कौन से इलेक्ट्रोड के लिए कौन सा मटेरियल यूज करोगे? हाँ सौम्या बताओ. For electrolytic refining of rock salt, what kind of cathode and what kind of anode? कैथोड ग्रेफाइट का और चलो कोई बात नहीं. और एनोड बताइए नहीं रहे हो. आप बोलो बेटा. एनोड पे जब क्लोरीन गैस आएगी तो ग्रेफाइट लो. उसके लिए लिखेंगे कि नहीं? बनाई जहाँ जाए उसके लिए कैसा इलेक्ट्रोड लो. सही बात नहीं. सिनेमा का फार्मूला हेमेटाइट हाइड्रोक्साइड MnO2 क्लोराइड मिनरल्स वो भी बता रहा है. ये सब लोग बता रहे तो तुम तो कर आए तो कैसे वो कैसे बता रहे हैं? तुम्हारा सेंटेंस ही फ्रेम नहीं हो पा रहा है. ग्रुप में झुंड बना के बोल रहे हो एक सेंटेंस तो एक सेंटेंस नहीं बना पा रहे. बोलो बेटा. इंद्र the sample of earth crust. Metal is found. Combine of these four की definition बताइए. और बताइए. Definition आ रही है फार्मूला आ रहा है तो क्या कुछ बताइए. ठीक है चलो. हाँ बोलो. हाँ हेमेटाइट. तुम तो बता ही नहीं रहे हो तो फिर क्या पूछे? एक चीज पूछी गई आप कोई नहीं बता रही. इच्छा वाला है जल्दबाजी में गलती है. चलो ओके नाउ सी MgCl2 देखो फॉर्मेशन ऑफ MgCl2. तो Mg से Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दैट इज 2A2 2A फिर Cl2. देखिए Cl जिसे ज्यादा ना करना हो 2 भी ना लगाना हो तो 2 भी मत लगाएं. Cl को देखो 287 और एक इलेक्ट्रॉन इसको दो तो फिर क्या हो जाएगा Cl माइनस. अब 2 लगाना है तो पहले 2 लगा दो. यहाँ कभी मत लगाना. तो दैट इज 288. इतनी बात समझ में आ गई. अब फिर इसके बाद आप क्या लिखें कि Mg और इस पे 2 इलेक्ट्रॉन दैट इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर प्लस Cl करना है
तो एक Cl दूसरा Cl, क्योंकि 7 है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसे देने हैं। 2 बोलो बेटा। और Cl के आगे भी 2 लगाना पड़ेगा ना? अगर लगाना है तो सब में 2 लगा सकते हो कुछ लोग, लेकिन यहाँ लगा रहे हैं जैसे ईशान जैसे तेज लोग भी, तो फिर हमें लगा कि शायद उन्हें फैमिलियर नहीं है। यहाँ लगाना है, लगाना है तो यहाँ लगाओ, ठीक है। और नहीं तो फिर ऐसे कर दो, और एक इलेक्ट्रॉन इसको जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसको जाएगा, तो एक यहाँ और एक यहाँ, एंड दैट इज फिर Mg2+ और Cl डॉट, यहाँ अंदर में माइनस बाहर में 2, बस इतना ही लिखना है। इतना करने पे आपको ये 3 नंबर का इतना है पूरा सेट। अगला देखो Na2O, so this is the formation of MgCl2। हाँ बोलिए। ये सबसे कम है, इससे कम में, इससे ज़्यादा लिखने पे हो सकता है इसमें भी डिस्प्लीजर ऑफ टीचर हो जाए। अगर इससे कम तो नहीं लिख सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो वो अलग से भी लिख सकते हो फिर, या तो दैट इज जैसा कि सृष्टि ने लिखा है इन सब के बारे में कि ये किसका कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, तो और भी जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो, बट इतना मिनिमम है। अब देखो दैट इज Na2O, तो Na में Na++ इलेक्ट्रॉन दैट इज 281, सो 28 और फिर 2O ऑक्सीजन दैट इज 26 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो क्या हो जाएगा O2 माइनस 28, ये हो जाएगा। फिर अब Na2O है तो 2 Na मिलके क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन किसको देंगे, ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन के पास तो बीच में प्लस का सिंबल आएगा इसमें वहाँ पे ऊपर है। चेक करो बुक में। कहाँ प्लस का सिंबल? आएगा, ठीक है। फिर क्या होगा बोलो, इसने इसको दे दिया तो यहाँ 2 लगाओ और 2 डॉट और ब्रैकेट के अंदर 2 माइनस, ऐसे समझ में आ गई। दिस इज फॉर्मेशन ऑफ Na2O। ये क्वेश्चन तो जरूर आएगा, तो ये अगर आना है, ये इसको बिल्कुल सही सही लिख के तैयार करके जाना। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट नेम, वो हमने आपको तैयार करा दिया है सारे मिनरल्स और ओर के बारे में, तो वो आप लिख लेना। इसको हटा दूंगा। सर एक सेकेंड लीजिए। नाउ 5 नेम्स, सो मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, यहाँ लिखो मेटलर्जी। अब मेटलर्जी में किसकी मेटलर्जी की जा सकती है, दैट इज मेटल्स ऑफ हाई, और मेटल्स ऑफ and metals of low reactivity, metals of low reactivity। भाई का लो रिएक्टिविटी के दो बताओ, Ag and Au, and इसके 3 बताइए। आयरन, अब इसमें मुझे लगता है मेटल लो इन रिएक्टिविटी सीरीज, सो Hg और Cu भी लिखा है, ये भी लिखो। Au हटा दो, Au तो फ्री स्टेट में पाया जाता है, Hg और Cu और जोड़ दो, क्योंकि बुक में इनका दिखाया गया है। लो रिएक्टिविटी पढ़ो यहाँ पे, लो रिएक्टिविटी में इनके दिखाया गया कि नहीं, सिनेबार का और कॉपर का, तो वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। दिखाया कि नहीं बुक में, ये पेज खोलो, लो रिएक्टिविटी में Hg का भी दिखाया है और कॉपर का। ओके, एंड नाउ अब देखिए इसके अलावा
मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, तो इसमें Mn का भी दिखाया है और साथ में Fe का भी दिखाया है। देखो हम इसमें 4 चीजें पढ़ेंगे, Fe और Mn। कॉपर भी है। ठीक है, कॉपर आता है नहीं? कॉपर को देखो इसमें लिखा है कॉपर लो रिएक्टिविटी, यहाँ पढ़ो मेटल इन लो रिएक्टिविटी, तो उसी आधार पर होगा। ये अलग अलग हेडिंग पढ़ी है, मेटल इन लो रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी और मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, ऐसे दिया है कि नहीं? तो इक्वेशंस दी हैं, उनसे देखो अभी हम समझा देंगे। ओके, तो आसान हो जाएगा। देखो आप ऐसे याद कर सकते हैं, फेमन पबजन। अब अगला देखो, पबजी। जो भी हो, अब मैंने तो उसी लिटरली बना दिया है। अब जैसे ये है कि जन नहीं मन खुला। ये अच्छा मन करेगा। अब ये देखो, मग काल नाका, दैट इज MgCa, ठीक है, कैल्शियम। और तीसरा कौन सा है? एल से तो लिथियम काल है, तो ठीक है, और नाका। अच्छा आर वो वाला है। मग ये K है, KAl और नाका, ठीक है। बोलो कॉपर किसमें है? इतना ही, ऐसे ही हमें पढ़ना है, ठीक है। नाउ अब इसको ये पढ़ लो, क्यों आग Hg। अब देखें कितनी बात हो गई, थोड़ा याद करने के लिए हो जाएगा, अगर याद रह जाए तो फिर ठीक है। तो हमने 3 चीजें पढ़ ली हैं। अब एक बात समझो, जो मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी हैं वो बहुत हल्के होते हैं। कैल्शियम कैसा होता है? तो इसमें से आप गैंग पार्टिकल क्या है कि कुछ ज़्यादा वो नहीं कर सकते हैं कि आप हाइड्रोलिक वॉशिंग कर करके। दीज आर सिंपली, इनका जो भी है, इनका क्या करना पड़ेगा बताइए? मोल्टन स्टेट की इलेक्ट्रोलिसिस करनी पड़ेगी। सो दे आर मोल्टन स्टेट की कर सकते हो, और नहीं तो अगर आप मान लो ब्राइन सोल्यूशन की करोगे तो NaOH नीचे मिल जाएगा, फिर आपको Na कहाँ मिलता आएगा? आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि नहीं? तो NaOH मिल जाएगा। तो फिर वो तो क्लोरोल्कली प्रोसेस है। हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? तो इनमें स्टेप है, 3 स्टेप हमने कौन कौन से बताए थे, जरा यहाँ देखो। राइट 3 स्टेप इन मेटलर्जी, वो लिखना बहुत जरूरी है। तो पहला स्टेप कौन सा है? तो 8 का आंसर लिखिए। दैट इज स्टेप्स आर कंसंट्रेशन ऑफ ओर। इसमें गैंग पार्टिकल निकाल दिया जाता है, मिट्टी को क्या कर दिया जाता है? मेरा इधर ध्यान दीजिए, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, गैंग पार्टिकल को रिमूव कर दिया जाता है। नेहा बी पार्ट बताइए, बताती नहीं है, बोलो आप। कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू, बहुत अच्छा, कन्वर्जन ऑफ मेटल, कन्वर्जन ऑफ ओर, ओर को बदलना है इनटू मेटल। इसमें 2 प्रोसेस आते हैं, दैट इज कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड एंड रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। अब इसमें 2 प्रोसेस कौन कौन से आ गए बताइए? कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड, और दूसरा क्या है बताओ? बहुत अच्छा, आप पूरा पढ़ के आई हैं। रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। साक्षी, जो कंसंट्रेशन ऑफ ओर है उसके 3 पॉइंट कौन कौन से हैं?
हाइड्रोलिक वॉशिंग, हाइड्रोलिक वॉशिंग, और दूसरा मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, चुंबकीय पृथक्करण विधि, और झाग उत्प्लावन विधि, दैट इज फ्रॉथ फ्लोटेशन। हाँ, इसमें ए पार्ट में कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड, इसके 2 पॉइंट हैं। कौन कौन से प्रोसेस हैं बताइए। कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, दूसरे बता रहे बेटा, तो पियानी आप भी बताओ। सब बता रहे हैं। और तीसरी चीज बोलो क्या है, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक, उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, उसके लिए हमने एक पार्ट दिया है। थर्ड पार्ट लिख लें, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। हाँ मनीष, ये 3 स्टेप बताओ कौन कौन से हैं, प्रॉपरली जैसे लिखे हैं वैसे ही मुझे बताओ। कन्वर्जन ऑफ ओर तो कोई स्टेप ही नहीं, आप बताइए। कंसंट्रेशन ऑफ ओर में 3 है, हाइड्रोलिक वॉशिंग, फोर्स फ्लोटेशन मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन, दूसरा है कन्वर्जन। क्रॉस फ्लोटेशन किसमें करोगे? जिंक और कॉपर और कॉपर में करोगे। मैग्नेटिक सेपरेशन किसमें करोगे? जिससे जो हाइड्रेट से चार्ज होता है वो किनमें मैग्नेटिक सेपरेशन करोगे? आयरन, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, गैडोलीनियम, क्रोमियम, अभी बोलिए अगला चैप्टर आने वाला है, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्रॉस फ्लोटेशन किसमें करोगे? कॉपर, मैग्नेटिक सेपरेशन किसमें करोगे? आयरन, कोबाल्ट, निकेल, गैडोलीनियम और ये और क्रोमियम। हाइड्रोलिक वॉशिंग किसमें करोगे? जिंक के ओर। समझ आ गई? जिंक के ओर में करेंगे, इतनी बात समझ आ गई। और फिर इसके बाद सेकंड पॉइंट बोलो। सेकंड पॉइंट कंवर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल, इसके 2 पार्ट है, कंवर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड और कंवर्जन ऑफ ओर इनटू रिडक्शन ऑफ मेटल। सही बता रहे हो। इनटू सेकंड पॉइंट बोलो। कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू, मतलब सेकंड पॉइंट कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल, उसका है कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल, और दूसरा है रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। ऐसा कुछ नहीं, आप बोलो। कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल, उसका एक पॉइंट है कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड, दूसरा पॉइंट है रिडक्शन ऑफ ओर मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। तो ये जो कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड, उसके 2 पार्ट हैं। कैल्सिनेशन किसमें करोगी? बेसिक चीज का आइडिया नहीं आपको। कैल्सिनेशन किसमें करोगे? कार्बोनेट में और रोस्टिंग कार्बोनेट और साक्षी, तीनों प्रोसेस बताओ। क्रॉस फ्लोटेशन किसमें करोगे? मैग्नेटिक सेपरेशन किसमें करोगे? अभी अभी आप गैडोलीनियम, क्रोमियम। अगला पॉइंट बोलो, सेकंड स्टेप। कंसंट्रेशन ऑफ ओर इनटू मेटल, इसमें 2 है। कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल, पहला कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड, एंड फिर इसमें दूसरा है कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल, और पहला इसमें है कैल्सिनेशन और दूसरा है रोस्टिंग। कैल्सिनेशन किसमें करोगे? रोस्टिंग किसमें करोगे? कैल्सिनेशन होगा कार्बोनेट ओर में और रोस्टिंग होगा सल्फाइड। बहुत अच्छा, वो सब पता है। हाँ, हाइड्रोलिक वॉशिंग किसके लिए ये सब्सटेंस के लिए। अभी बताएंगे, पहले तुम 5 हाई रिएक्टिव के नाम बताओ।
potassium, sodium, calcium, magnesium and aluminum. ऐसे ही अब मीडियम के बताओ। Zinc, iron, lead और manganese. और लो रिएक्टिविटी सिल्वर, मर्क्यूरी और कॉपर। सर आपने मैंगनीज मीडियम रिएक्टिविटी में बोला था, तो ये हाइड्रोलिक वॉशिंग में मैंगनीज हाइड्रोलिक वॉशिंग किसी की भी की जा सकती है, सब में जिसमें कर लीजिए दो इवन एजी की कॉपर की नहीं दिखाई थी। हाइड्रोलिक वॉशिंग से किसी का मतलब लेना देना नहीं है, पानी से धो के मिट्टी निकाल दो। हाइड्रोलिक वॉशिंग का मतलब समझती क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ और मिट्टी ज़्यादा तो हटानी पड़ेगी ना। हाँ बोलो। ऐसा नहीं होता है सभी और में, हमने कल वीडियो भी भेजा था, बहुत मिट्टी से निकाल लियो तो मिट्टी नहीं हटाओगी, तो फ्री स्टेट में से तो सिंपली हटा के बस उनका हो जाता है, लेकिन जो दूसरे हैं सभी में से मिट्टी तो हटानी पड़ेगी। समझ में आ गई बात की नहीं? इवन फर्स्ट वाले में नहीं करना है। फर्स्ट वाले में क्या होगा कि देयर मोल्टन स्टेट इज द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ देयर मोल्टन स्टेट, क्योंकि वो रॉक साल्ट के फॉर्म में क्रिस्टलाइन फॉर्म में ही पाए जाते हैं। ये समुद्र में पाए जाएंगे या इनके पहाड़ों में, तो ज़मीन के ऊपर हैं और हल्के हैं तो मिट्टी अपने आप ही इसमें नीचे चली जाती है। जब बारिश होती है अपने आप मिट्टी नीचे चली जाती है। यहाँ कैल्शियम के पहाड़ हैं, मार्बल क्या मिट्टी ऊपर है? अगर मिट्टी होती तो सब मार्बल गंदे होते, तो बहुत साफ सफ़ेद, क्योंकि ये हल्का है ना कैल्शियम, तो इसके मार्बल में भी मिट्टी, जब बारिश हुई मिट्टी कहाँ चली गई? नीचे, मार्बल के क्रिस्टल बन गए। इसी को तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं, 9th में आपने पढ़ा। जब क्रिस्टलाइजेशन होता है तो 0.1% भी उसमें इम्प्योरिटी नहीं रहती, इतना प्योर मार्बल। समझ में आ गई बात? तो क्या लिख सकते हैं नाउ? ये पहला क्वेश्चन, फिर इसके बाद नेम 5 नेम, ये तीसरा वाला एक आपको ये बता दिया, ठीक है। नाउ ये आप लिख लेंगे for which kind of ore calcination and for which roasting is done, ये लिख लोगे? सर कार्बोनेट और सल्फाइड वो लिखना है। ये 5 क्वेश्चन करोगे। हाँ फिर हम आगे का बताएंगे। हाँ हेलो, हाँ जी, दो ही सेंटेंस लिखना लेकिन सही लिखना। चलिए बहुत मिटाओ। दिक्कत है।
भूल ना जाओ कल सबकी स्टार्ट करते चलो स्टार्ट करो. Now see. सोडियम रॉक सॉल्ट सो हम लोगों ने देख लिया कि इसमें कुछ कुछ चीजें देखी हैं, काल और दूसरा कौन सा है, नाका और एमजी, यही सब है. इस एमजी है ना, तो ठीक है. नाउ इसके लिए आपको स्टेप 3 यूज करना है. इसकी मेथोडोलॉजी क्या है बताइए. That is ore is melted and its electrolytic refining is done. क्या करना चाहिए इस केस में. ore is melted and electrolytic. और रिएक्टिविटी का कुछ भी नहीं लिखा था है वो अभी हम पूरा कराएंगे ना, तभी तो पूछेंगे. आपके पास है ना फ्लो चार्ट, पहले कराएं तो. ओर इज मेल्टेड, इधर देखो बेटा, ओर को मेल्ट कर लो. NaCl का ओर है तो उसको क्या करो, मेल्ट कर लो 801 डिग्री पर, ऐसे दूसरों के भी. एंड इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग इज डन. रिफाइनिंग इज डन. Cathode is taken of platinum and anode is taken of graphite. So cathode okay is taken, हाँ इस वाले केस में ये हमारा 7th का आंसर होगा. Cathode is taken of platinum and anode is taken of graphite. Yeah. In this way we get ultra pure metal. कभी भी इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग की जाएगी तो उससे क्या मिलेगा बताओ, अल्ट्रा प्योर, यानी बिल्कुल 100% प्योर सर हाई मेटल मिलेगा. में तो सिर्फ दो ही होता है ना, एक कंसंट्रेशन ऑफ 4 और सेकंड में ये. बोलो. हाई रिएक्टिविटी में तो 2 स्टेप होता है ना. हाई रिएक्टिविटी में कंसंट्रेशन की भी जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, बस सीधा मेल्ट करो. तो सर हमने पहले वो लिखेंगे उसके बाद ये यही लिख दो बस स्टेप 3, कुछ नहीं करने की जरूरत है. बाई दिस, इससे हम क्या पा जाएंगे बताइए, अल्ट्रा प्योर मेटल इज ऑब्टेन्ड. स्टेप 3 क्यों लिखा है? क्योंकि 3 स्टेप होते हैं, अभी कराया था कि नहीं. फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप्स आर स्किप्ड. इसमें सीधा 3rd स्टेप करना है. इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग की मोल्ड करके, और फर्स्ट और सेकंड स्टेप को क्या किया है, स्किप. आप चाहे तो लिख दें स्टेप 1 अपने लिए लिख लें, स्किप. इसमें आवश्यकता नहीं है. अब जरा देखो, ये हमारा 4th क्वेश्चन. हाउ मेटलर्जी ऑफ सोडियम कैसे की जाती है. सो रॉक सॉल्ट is melted, that is melting point क्या है 801 डिग्री सेल्सियस, and its electrolytic refining. लिसिस भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस भी वही है, is done. इसकी इलेक्ट्रोलिसिस की जाए तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक मोल्टन स्टेट में 2 अलग अलग से ले लीजिए, और एक ये देखिए दैट इज प्लस वाला है और ये माइनस वाला है. मोल्टन है तो इसमें Na प्लस और Cl माइनस अलग अलग हो गए. अब Na प्लस कहाँ जाएगा और Cl माइनस, तो ये इस पे इकट्ठा हो जाएगा. मनीष इसको मैं ये किस मटेरियल का ले लेना चाहिए. देर लगाते हो बताने में, बोलो. अरे तुम तो क्वेश्चन तुम तो इधर उधर देख रही थी. हाँ बोलो. प्लेटिनम का. और ये कौन सा इलेक्ट्रोड है,
पता ही नहीं, कैटायन जा रहा है कैरियर एनोड, सो कैथोड है और इसको किसका लेना चाहिए? प्लेटिना। जहाँ एनाइन जाए एनोड, ग्रेफाइट और ये ग्रेफाइट का ले लिया जाए। अब ये हमारा सोल्यूशन ऐसा हो गया, तो हीट कर दिया। अब जरा देखिए, स्विच लगाना हो स्विच भी लगा दो, ऐसे कर लिया। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रोलिसिस की जाएगी, तो ग्रेफाइट भी शाइनी मेटल है ना। हाँ। अब यहाँ पर जब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर ली जाएगी तो लिखो एट कैथोड क्या होगा बोलो? जो Na+ वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्या बना देगा? सोडियम मेटल सॉलिड। और ये क्या एक्वियस था, और वहां क्या बन गया? और बोलो एट एनोड क्या लिखें? एट एनोड जो Cl- है वो क्या करेगा? Cl2 बना देगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। आप चाहे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे, वरना इतने भी छोड़। ये हमारी इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइन सोडियम फ्रॉम रॉक सॉल्ट। बात समझ में आ गई? तो रॉक सॉल्ट मेल्ट कर दिया और इलेक्ट्रोलिसिस इज डन। एट कैथोड we obtain ultra pure form of sodium. ये अल्ट्रा मतलब At cathode उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं रहेगी। We get ultra pure form of sodium. तो ये हमारा 4th क्वेश्चन हो गया। समझ में आ गई बात आपको? हाँ यही है बस। अब जरा देखो मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, तो इसमें हमने क्या क्या आपको बताया था? जिंक, लेड, आयरन और मैग्नीज। जिंक, कॉपर था ना, लेड, लेस रिएक्टिविटी, आयरन मैग्नीज और Mn फेमन पॉइजन। ठीक है, इसमें आपके पास अब देखो इसमें स्टेप 1 होगा। स्टेप 1 क्या है बताओ? और इज क्रश्ड। अच्छा तुम बहुत जानती हो पियानी, तो बता दो इसमें अगर हम क्रश करेंगे तो फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस है, और एक है हाइड्रोलिक वॉशिंग, और एक है मैग्नेटिक सेपरेशन। इन तीनों में से कौन सा मेथड छोड़ सकते हैं? बहुत तेज हो तुम। फ्रॉथ फ्लोटेशन, क्योंकि कॉपर यहाँ पे है ना, तो वो चीज तो तुम्हें याद होनी चाहिए, समझ में आना चाहिए कि वहाँ क्या था बताओ। क्यों आग और वो था Hg, तो वो उसमें जब Q यहाँ पे है Cu, तो फिर हम फ्रॉथ फ्लोटेशन वहाँ के लिए रखेंगे ना। और चूंकि यहाँ Fe है और जिंक भी है, Fe है, तो Fe के लिए हम मैग्नेटिक सेपरेशन कर देंगे, और बाकी 3 के लिए क्या कर देंगे? हाइड्रोलिक वॉशिंग। उसको क्रश को धोएंगे। हाँ बोलो। कॉपर का ही होता है बस, ठीक है। फिर आगे हम देखेंगे, और जब 11th में जाओगे फिर बेसेमर कन्वर्टर में क्या करेंगे, फिर अलग अलग की डिटेल में पढ़ेंगे 3 पेज की। अभी तो बहुत हल्की फुल्की कर रहे हैं, तो जितनी बिल्कुल जरूरी है, एक बीज डालने का काम कर रहे हैं बस। अभी आप समझिए पहला स्टेप क्या करें यहाँ पर? दैट इज ओर इज क्या किया जाए बोलो? क्रश्ड एंड क्रश किया जाएगा, एंड फॉर Zn Pb और Mn क्या किया जाए? हाइड्रोलिक वॉशिंग इज डन। और बोलो फॉर Fe क्या किया जाए? मैग्नेटिक सेपरेशन इज डन। इन दिस वे ओर इज कंसंट्रेटेड। ओर का कंसंट्रेशन कर लिया। इन दिस वे ओर इज कंसंट्रेटेड। अब इसका सेकंड स्टेप देखो, स्टेप 2, मीडियम रिएक्टिविटी ओर्स आर फाउंड आइदर इन कार्बोनेट फॉर्म और इन सल्फाइड फॉर्म। और किसी फॉर्म में पाए ही नहीं जाते। तो मीडियम रिएक्टिविटी वाले जो मेटल्स हैं वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं? सो मीडियम रिएक्टिविटी ओर्स आर, मुझे सेंटेंस कंप्लीट करो, आर फाउंड। घर में मिठाई में ध्यान है। हाँ बोलो बेटा।
ये बता वो उनके भाई हैं बस। बोलो बेटा। हाँ आप बताइए ईशान। The metal reactants are found in metal carbonate and sulfide, metal sulfide too. ये लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं? आर फाउंड इन, ठीक है, किस फॉर्म में? आइदर इन कार्बोनेट, ठीक है, तो कार्बोनेट फॉर्म और सल्फाइड फॉर्म। तो अब हम इनको क्या करें? मान लीजिए आपके पास दो चीजें हैं, ZnCO3 है और क्या है बोलो? ZnS। स्टेप 2 कर रहा हूं, तो ZnCO3 को क्या करिए? हीट कर दीजिए और नो एयर। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? कैल्सिनेशन। और रोस्टिंग में तो आप देखते हो कि कोई चीज भूनी जाती है, खूब भुट्टा भूना जाता है, रोस्ट, ब्रेड को भी रोस्ट करते हैं, खूब हवा आती है कि नहीं? रोस्टिंग तो बहुत होता है, तो उसके लिए एयर, इन एयर। तो अब इसमें क्या चीज हो जाएगी बताओ? ZnO+CO2, ये उड़ जाएगा और ये सॉलिड फॉर्म में आ गया। अच्छा इसमें क्या होगा? SO2, क्योंकि यहाँ एयर है, तो क्या चीज हो जाएगी? ये चीज हो गई। अब दोनों ही केसेस में ZnO मिल गया, तो ये स्टेप 2 का फर्स्ट मेथड है। पहला हमने क्या कर दिया? सो फ्रॉम ओर मेटल ऑक्साइड इज ऑब्टेन। स्टेप 2 में हमने क्या पा लिया बताओ? नाउ अब इसी में नाउ ओर इज कन्वर्टेड, ओर इज converted into metal oxide either by roasting और दूसरा क्या है? कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। तो हमने ये काम कर लिया। स्टेप 2 का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है, अब सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। देखो इसमें कर लिया कि नहीं? तो अब आगे का देखिए कि नेक्स्ट इज इसी का बी पार्ट। बी पार्ट देखिए। नाउ मेटल ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड, इसे क्या करेंगे? reduced to metal using coke। coke क्या है? that is pure form of carbon। समझ में आ गई? कोयला जो है प्योर फॉर्म है, लकड़ी को जला दो थोड़ी देर और फिर पानी डाल के बुझा दो, वही कोक है। उसमें सब गैसेस NO2 SO2 निकल जाएंगी, वही कोक। अब इसको कैसे करेंगे बोलो? ZnO था और उसमें कार्बन डाल के हीट कर दिया, तो हीटिंग भी है, हीटिंग वर्ड जरूर यूज करना, ठीक है? और यहाँ कैल्सिनेशन लिखा है, तो यहाँ क्या लिख दो? रोस्टिंग। तो फिर बोलो क्या हो जाएगा? Zn प्लस इसमें कुछ नहीं देंगे, नो एयर। ये भी कैल्सिनेशन ही है। अब इसका स्टेप 3 देखो। स्टेप 3 क्या है? अभी 2 स्टेप दिखा दिए, यहाँ तक कुछ पूछना है साक्षी? अच्छी बात है। अब हम तीसरी बात देखेंगे। स्टेप 3 है इसका इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। So the metal obtained by second step contains some impurities। जिंक के नीचे देखो कौन कौन है? कैडमियम और Hg। तो उसी ग्रुप के लोग एक साथ हैं कि जिनकी रिएक्टिविटी एक जैसा, जिनके प्रॉपर्टी एक साथ, तो सब एक साथ पाए जाते हैं, ठीक है? समझ आए? क्वेश्चन हो जाने दो, हमें पता है क्या क्या क्वेश्चन। आप यहाँ देखो, ठीक है? तो क्या लिखोगे बताओ? अभी क्या लाइन बोली? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में कैडमियम और उसके नीचे जो Hg है वो जो है कैथोड पे। बहुत अच्छा। ईशान बोलो अभी क्या बोला? अर्पिता? सर वो जो Hg
और GD ये सब है, इनकी इम्प्योरिटीज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से निकाली जाती है। हाँ, द मेटल ऑब्टेन फ्रॉम स्टेप 2, ठीक है, कंटेन्स सम इम्प्योरिटीज, ठीक है, लाइक कैडमियम एंड मर्करी। इस केस में ऐसा है, बट हम जिंक की बता रहे हैं आपको, तो क्या होगा कि सम इम्प्योरिटी, जैसे दूसरे होंगे तो उनमें भी अपने अपने होंगी। सो दैट इज मेटल obtained from step 2 contains some impurities of other metal which is removed by using electrolytic refining, which is, इसका फिगर आपकी बुक में बना देख लो, removed by using electrolytic refining। जो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग वर्ड ना समझते हो, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का मतलब किसी चीज का शुद्धिकरण, दैट इज रिफाइनिंग बाय इलेक्ट्रोलिसिस। वो वही बात है, इलेक्ट्रोलिसिस करनी है, उसको बिजली देनी है, बस उससे रिफाइन हो जाए। इलेक्ट्रोलिसिस और ये एक ही वर्ड है, बट रिफाइनिंग बाय इलेक्ट्रोलिसिस, तो दैट इज सिनोनिम्स है, रिफाइनिंग बाय इलेक्ट्रोलिसिस। अब देखिए स्टेप 3 में जो रिफाइनिंग है, इसके बारे में आप देखें कि ये, इसके लिए आप क्या करें, एक इलेक्ट्रोलिटिक बेड ले लें, दैट इज सम वेसल, और उसमें ये माइनस है एंड दैट इज प्लस। तो आपके पास आया है, ठीक है, क्या चीज आपने पाई बोलो, क्या जिंक पाया है, जिंक पा लिया ना, तो ये जो तुम्हारे पास होगी, क्या जिंक प्लस पे जाएगा कि माइनस पे? माइनस पे जाएगा। ठीक है, अच्छा तुमने यहाँ मेटल पाया, मेटल मोल्ट कुछ भी पाया, वो उसको मेल्ट कर लो और उसकी एक मोटी सी रॉड बना लो। क्या कर लो बोलो? खूब मोटी सी, इतनी मोटी बना लो। बना ली? ये कौन सा है? मेटल ऑब्टेन्ड, इम्प्योर मेटल ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेप 2 मिल गया, लेकिन ये इम्प्योर है। क्या चीज लिखो बताओ? मेटल ऑब्टेन्ड। इस केस में, हमारे केस में ये जिंक है, क्योंकि जिंक पाया। मेटल ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेप 2। सौम्या यहाँ तक समझ में आया? बोलो। हमने ये मेटल यहाँ लगा दिया और यहाँ बिल्कुल पतला सा, इस पेन से भी पतला, खूब महंगा मेटल प्योर जिंक का लगाओ। समझ में आया? तो यहाँ पतला सा लगा दो ऐसा। तो ये कैसा है? अल्ट्रा प्योर जिंक। प्योर जिंक ले लिया। अच्छा, सोल्यूशन में क्या ले लो? सोल्यूशन में एसिडुलेटेड जिंक सल्फेट सोल्यूशन ले लो। जैसे मैंने जिंक डाला था उसमें जिंक सल्फेट बन गया। तो दैट इज व्हाट? एसिडुलेटेड का क्या मतलब है? पानी, थोड़ा H2SO4 और थोड़ा जिंक सल्फेट। क्या चीज ली जा रही बताओ? एसिडुलेटेड ZnSO4 सोल्यूशन। मुझे समझ नहीं आ रहा है, जिंक ये जो जिंक जो है ये एनोड पे, अभी समझा देते हैं। एनोड पे जो है, हाँ हाँ, कैथोड से अभी बता रहे हैं। एक मिनट, बस तुम इतनी बात कैथोड समझो। से जाएगा तो ये कैथोड के मतलब किसके ऊपर कटा होगा? इसमें भी प्लेटिनियम और अभी तो कुछ ऐसा कहा नहीं जा सकता। अभी हमने एक इसमें लिया है इम्प्योर और एक प्योर, इतना ही समझो। और हमने जिंक सल्फेट का सोल्यूशन लिया, इतना ही अभी पता है। अभी फिर आगे पढ़ के बताएंगे। अभी ये इम्प्योर है और ये प्योर। अब एक बार समझ लो, इम्प्योर कैसा, मुझे वो ये नहीं आ इस रहा। जो स्टेप वाला है यहाँ से मिला था, उसको पिघला के बना के लटका दिया। यहाँ मिला था जिंक, पिघला लो और एक बार बना के लटका।
या जो है जो मिला है बस उसको उसी रॉड को बड़ी सी रॉड लेकर उसी पे तार लगा दो। जरूरी नहीं कि पिघलाओ रॉड ही बनाओ, उसी को डाल दो, बस उसमें तार लगा दो। क्या जरूरत है शेप देने की? नहीं। तो ये इम्प्योर है। अच्छा ये प्लस है, इतनी बात समझ में आई। और ये माइनस है, ये इम्प्योर है और ये प्योर ले लिया। अच्छा मतलब अभी डाउट है ही नहीं, अभी तो हमने कुछ बताया नहीं, तो अभी से कहाँ से डाउट आ गया? अभी होने तो दो ना, थोड़ा हो जाए तब तो डाउट भी मजा आए। अभी हमने कुछ किया नहीं है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग समझो फिर डाउट पूछना। तो हमने इम्प्योर वाला जो यहाँ से मिला था, जो हमें मिला जिंक को लटका दिया और एक अच्छा सा जिंक लटका दिया। अच्छा अब जरा देखो जिंक के साथ कौन कौन है? क्या कैडमियम है और मरकरी? तो जो दूसरे भी हैं वो इस पर आएंगे पहले, किस पे? इसी पे। क्यों? क्योंकि अब पहले समझो, इधर ये जिंक इधर आएगा Zn, तो अब इसमें से एक जिंक उतर जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, कहेगा देखो एक जगह खाली हुई भाई, एक पैसेंजर इधर गया तो एक जिंक उतर जाएगा कि नहीं? जितने सल्फेट होंगे उतने तो जिंक होंगे। एक जिंक गया इस पे चढ़ने तो एक उतरा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, इनमें कंपटीशन है, कैडमियम भी आएगा और कौन कौन आएगा बताइए। तो अब जरा देखिए, जिधर ये सुनिए जिंक यहाँ इकट्ठा हो रहा है, जिंक इकट्ठा हो रहा है, और इनमें किसकी किसकी इम्प्योरिटीज है? इम्प्योरिटीज ऑफ कैडमियम एंड मरकरी। तो जैसे जैसे जिंक इकट्ठा होता चला जाएगा, तुम सिर्फ मुझे इतना बता दो कि कैथोड कौन सा है, तब मुझे पता चल जाएगा। वो वाला ये कैथोड है, तो इसको लिखो कैथोड। क्यों है ये कैथोड? क्या कैटायन जा रहा है? हाँ, एनोड कौन सा है? इधर वाला। इधर वाला। वास्तव में ये प्लस प्लस है, तो सल्फेट इसकी ओर अट्रैक्ट होंगे, तो इसीलिए जहाँ एनाइन जाए वही तो एनोड है। तो इसको क्या लिखते हैं बताओ? अच्छा, इम्प्योर में जिंक सल्फेट। अच्छा, जिंक सल्फेट का सोल्यूशन ले लिया, दो एक बहुत मोटा सा रॉड डाल दिया, पतली सी तार डाल दी, कील डाल दी जिंक की, समझो इतना पतला डाल, ये देखो, और उस पे तार लगा दिया, बिल्कुल प्योर फॉर्म है। और इसी में ये देखो तार है ऊपर, इसी में तार लगा दो। समझ में आई बात कि नहीं? एक पतला और एक बहुत मोटा, जिंक डाला। समझ में आई कि नहीं? तुम ये सोचो कि एक जिंक लिया, एक पतला सा जिंक ले लिया, बहुत मोटा जिंक, एक सॉल्यूशन बनाया। समझो, इस चीज की कल्पना करो, फिर हम आगे ठीक है? यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब देखो जैसे जैसे जिंक जाएगा, यहाँ धीरे धीरे इसके नीचे क्या चीज इकट्ठी होती जाएगी? कैडमियम और मरकरी। इस चीज को कहेंगे एनोड मड। धीरे धीरे ये मोटा होता चला जाएगा, प्योर हो जाएगा। ये नहीं होगा कैडमियम, ये चीज नहीं जाएंगी, ये मतलब जो दूसरे होंगे ना, तो वहां पे वो इकट्ठा होते चले जाएंगे, और अदर इम्प्योरिटीज दे विल गेट कलेक्टेड। ऐसा भी होगा कई बार कि वो पहले जाएंगे। इनमें क्या होता है कि एक रेस होती है, तो आप देखो अरे इसमें ये आने लगा, कोई इससे ज्यादा रिएक्टिव हुआ तो थोड़ी देर आने दो, कह दो ये देखो ये अब ये ब्राउन कलर का हो रहा है, तुरंत वो हटा लो, दूसरा जिंक लगाओ। जब वो आके खत्म हो जाए फिर दूसरा देखो, अरे अभी भी जिंक नहीं आ रहा, अब ये आने लग गया, अच्छा आओ आओ और आओ, अच्छा तुम आ गए, अब इसको हटा लो, हाँ अब जिंक आया। और जब जिंक आएगा तो फिर जिंक ही जिंक आएगा, दूसरे नीचे गिर जाएंगे। तो जो पहले आ जाए उनको आने दो, रोक तो नहीं सकते हो। तो जो पहले आ रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, इसका मतलब है वो लो रिएक्टिव। जो रॉड है उस पे आएगा वो सब। हाँ, इसी रॉड पे। तो शुरू में कुछ और भी कलर चेंज होंगे, तो जब देखो दूसरे कलर के आ रहे हैं तो हटाते जाओ, और जब जिंक आने लगे बोलो अब जिंक का कलर जिंक का एक शाइनी कलर होता है, बिल्कुल अच्छा सिल्वर कलर। वो तो हमारी काली रॉड है, जब हमने एब्रेसिव से रगड़ा था सैंड पेपर चमक गई थी। तो ऐसा हुआ था कि नहीं? हमने करके भी दिखाया था। जो भी हो, तो जिंक सिल्वर कलर का होता है, ठीक है ना? जस्ता, लेड को सीसा कहते हैं, तांबा, सीसा, ऐसे सब चीजें आप लोग को पता है, कांसा। हिंदी में सबको पता है, लेकिन इंग्लिश में समझो जिंक। तो अब इतना समझ में आ गया? सो द इम्प्योरिटीज while zinc, pure zinc is collected over cathode, the impurities get accumulated below anode, and this is called anode mud.
इतनी बात। अब इस चीज के बारे में लिखें, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग क्या होगा बताओ? जैसे जैसे तुमने इसमें जिंक सल्फेट का सोल्यूशन क्यों लिया बताओ? क्योंकि जैसे जैसे कंटिन्यूटी के लिए एक जाएगा तो एक आएगा कि नहीं, तो कंटिन्यूटी के लिए ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग प्योर जिंक इज कलेक्टेड एट कैथोड, ठीक है? प्योर जिंक इज कलेक्टेड कहां पर हुआ बोलो? कैथोड। The rod, cathode rod becomes thicker. Cathode becomes thicker. However, anode get depleted. Thinner होता चला जाएगा. Anode get बस एक बार बता दीजिए सल्फेट कहाँ जाएगा SO4? नहीं जाएगा, वो सोल्यूशन में रहेगा। जितने जिंक जाएंगे उतने जिंक उतर जाएंगे। सल्फेट का सोल्यूशन सल्फेट बन रहा है, लास्ट तक वहीं रहा। सर फिर सॉल्यूशन में जिनके वो भी जाएंगे। पहले तो सोल्यूशन का जाएगा तभी तो वहां से उतरेगा। यही तो कंटिन्यूटी है। नहीं तो दूसरी चीज ले लोगे तो वो पहले चढ़ जाएगी। तो इसलिए अब ये हो गया। अदर इम्प्योरिटीज, अदर मेटल इम्प्योरिटीज विल फॉल डाउन बिलो एनोड एंड इट इज कॉल्ड एनोड। मड अपने आप में बहुत बड़ी डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको इवन प्रैक्टिकल में एनोड मड ही पूछा जाए, वो जान जाएगा तुमको मेटलर्जी आती कि नहीं। तो एनोड मड पूछ लेगा, वो जैसा तुम आंसर दोगे वो जान जाएगा कि हाँ ये जानते हैं। तो लिखो अदर इम्प्योरिटीज गेट कलेक्टेड। कहां पे कलेक्ट हो जाएगी बोलो? दैट इज एट द बॉटम ऑफ एनोड इन इलेक्ट्रोलिटिक वेसल। बॉटम ऑफ एनोड इन इलेक्ट्रोलिटिक वेसल। कोई बताएगा नहीं। एंड इट इज कॉल्ड, सार्थक इसे क्या कहेंगे? ये कुछ नहीं सुनता है। मैं बता रहा हूँ कि अगर इससे कहो तो इट इज कॉल्ड कहेगा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ये भी बोल सकता है, इसमें बिल्कुल भी भरोसा मत करना। हाँ बोलो बेटा। हाँ ये इसको कुछ लेना देना नहीं है। सो इलेक्ट्रोलिटिक वेसल इट इज कॉल्ड एनोड। इतनी बात समझ आ गई कि इसको एनोड, सौम्या समझ में आ गई बात? ओके नाउ हम लोगों ने क्या देख लिया बताओ? स्टेप 2 देख लिया, मीडियम रिएक्टिविटी। अब स्टेप 3 देखो। ये आप अपने फ्लो चार्ट पे देखो, क्या फ्लो चार्ट में बिल्कुल यही चीज दिखाई गई है सेकंड स्टेप तक। रिडक्शन टू मेटल स्टेप 2, हाँ? रिडक्शन टू मेटल स्टेप 2 तक है। देखो इस ये ए और बी ये सब स्टेप 2 है। दैट इज फ्रॉम ओर टू मेटल ऑक्साइड and from metal oxide to metal। पहला स्टेप ये था। अच्छा अब इसी फ्लो चार्ट पे आओ, ठीक है? अब हम किस पे आएंगे बताओ? दैट इज लो रिएक्टिविटी में क्या बताया था? Cu और बोलो Hg। अब देखिए ऐसी स्थिति में सिल्वर की दिखाई गई है। सो दीज, इसमें भी क्या होता है? पहला स्टेप लिखो कि स्टेप 1 क्या लिखेंगे कि फॉर कॉपर फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज यूज्ड एंड फॉर सिल्वर इसके लिए आप हाइड्रोलिक वॉशिंग यूज करो। सो फॉर कॉपर पाइन ऑयल डाला जाता है। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज यूज्ड। सो कॉपर ओर कौन कौन से हैं? दैट इज Cu2S और Cu2O, क्यूप्राइट एंड कॉपर ग्लांस, यही है कि नहीं? सो एंड फॉर सिल्वर हाइड्रोलिक वॉशिंग इज डन। अब स्टेप 2 आ जाइए। स्टेप 2
कभी तुमने देखा है कि चांदी की पायल काली पड़ जाती है? हाँ उसको कहते हैं टार्निशिंग। जैसे आपने देखा कॉपर टार्निश हो जाता है, आयरन रस्टेड हो जाता है। तो कॉपर से कॉपर क्या बनता है? कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड, CuCO3 और CuOH होल ट्वाइस। यही तो ग्रीन रस्ट है, फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था कि नहीं? और CuOH होल ट्वाइस। लेकिन एक होता है सिल्वर का काला पड़ना, वो Ag2S। ये ग्रीन रस्ट है, इसे क्या कहते हैं? कॉपर की ग्रीन रस्ट। ऐसा हमने दिखाया भी था, हमारे पास सैंपल भी रखा हुआ है ग्रीन रस्ट का, ठीक है। और ये ब्लैक हो गया क्या? तो स्टेप 2 में सिल्वर इज फाउंड इन नेचर इन सल्फाइड फॉर्म। सर सिल्वर और यस सर, हाँ, ये इसमें सर बुक में सर सल्फाइड और लिखा, तो सारे सिर्फ सल्फाइड और में होते हैं, इसमें कार्बोनेट और में नहीं होंगे। कॉपर के भी सल्फाइड ओर में ही मिलेंगे। ऑल ओर्स ऑफ लो रिएक्टिविटी सीरीज आर फाउंड इन सल्फाइड। So all ores of this group are sulfide ore। अब देखो AgS है, AgS की क्या कर लो? सिंपली AgS की रोस्टिंग कर लो। देख लो AgS, और इसमें हीट करो और ऑक्सीजन, Ag अलग हो जाएगा, कहेगा हम ऑक्सीजन के साथ मिलते ही नहीं, ले जाओ, हो गया। इतना आसान है? Ag2S करो, क्योंकि ये 1 की वैलेंसी है। सुनो, रोस्टिंग करोगे Ag अपने आप अलग हो जाएगा, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं। और देख लो। फिर इसके बाद जब मेटल मिल जाए, अब स्टेप 3 में द ऑब्टेन्ड मेटल इज रिफाइंड। स्टेप 3 लिखो, स्टेप 3 ऑब्टेन्ड मेटल। और कभी भी अगर सिल्वर को करना है तो सिल्वर क्लोराइड का सॉल्यूशन लेना, सिल्वर नाइट्रेट लेना, सिल्वर का ही लेना, और थोड़ा एसिडुलेटेड H2SO4 भी डाल देना, सही है। तो ऑब्टेन्ड मेटल इज, फिर क्या करना पड़ेगा? रिफाइंड। अब आपको ज्यादा काम नहीं करना है, आपको ये फ्लो चार्ट बनाना है। जो चित्र है उसको अपनी आंखों से फोटो खींच लो। सर शाम 8 बजे हैं, इसमें शाम को ले लेते। अभी रुको जरा। नाउ आप इसमें जो, हाँ, बीच वाले का करो बस। अच्छा ठीक है। इतना तो आसान कर दिया, अच्छा बीच वाले, सिर्फ बीच वाला करो। चलो बीच वाला को छोड़ के दोनों साइड वाले सर नहीं आप जो भी ये सिल्वर जो है सल्फाइड फॉर्म में पाया जाएगा, ब्लैक चांदी के जैसे काली पड़ जाती है, उसके लिए सिर्फ आप चांदी के पाल को आग में गर्म कर दो, तुम्हारी चमक के निकलेगी। रोस्टिंग कर, हैं? और फिर रिफाइनिंग करने के लिए आप चाहे AgCl3 ले लें और प्योर करना है तो वही प्रोसेस है। एक तरफ पायल लटका दो और एक तरफ पतली सी तार चांदी की अल्ट्रा प्योर, ठीक है। मैंने कुछ नहीं लिखा, मतलब लास्ट वाला मत हटाना। आपको मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी पे लिखना है। तो इतना ज़्यादा है, ज्यादा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको नहीं जाना होगा, दिक्कत प्रोसेस तो याद है। यही है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में लिखनी है। सर ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक
सर इतने में हो जाएगी? तो शाम वाली क्लास शाम वाली 4 बजे रख लें, 4 से 6, नहीं 5 से 7, सर नॉर्मल टाइम वही नॉर्मल ठीक है। सर नहीं Normal. नहीं बैठेगा जो होती वही ना। सर 6 से 8 वही नॉर्मल है नॉर्मल सर 3 से 5 3 से 5 अभी 2 बजे छोड़ेंगे 2 बजे हाँ बोलो। मेरा कैसे चलेगा? तुम्हारे अकेले के थोड़े करेंगे सर तो 3 दिन जाके 3 दिन ट्यूशन मैं सर के भरोसे थी, मुझे लगा सर 9 से 11 कर लेंगे, मेरा तो काम बन जाएगा।